Good evening, everyone. Here I welcome you all on this particular video, and here we provide you a course which is means first semester course in various engineering colleges and universities, and it is a basic element of mechanical engineering. And in many colleges and universities, the same syllabus is also known as fundamental of mechanical engineering and various other names. So you can match the syllabus and you can get the benefit from this particular course. Okay, and this particular course is taken by me. Let me introduce myself. Myself Kapil Kumar. I am MTech from IIT VHU Varanasi, and I have 6+ years of teaching experience. Currently, I am working in Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur, and I am one of the TechU faculty. And this is our initiative by all India TechU faculty, and it is a free channel for access to everyone. And particularly, we are providing various courses in different branches for the preparation of GATE exam and various other competitive exams. And along with that, we are also providing some courses of the BTech which student might find difficult to score good marks and to gain a good knowledge. Okay, so this particular subject is for the first semester students. I, Kapil Kumar, along with my colleague Tarun sir, we will be taking this particular course, and the course basically consists of two major domain. Okay, let me go to the syllabus. Okay, so this complete course consists of two major domain. So one is one can be called as the thermal and thermal machinery part. Okay, and the second one is manufacturing and material science part. So I will be taking the manufacturing, various types of manufacturing processes, introduction to all kind of manufacturing processes, and the material science part, and Tarun sir will be taking the thermal part. So I welcome you once again all, and let's begin this particular course. Okay, so in today's lecture we just do some historical perspective. Okay, and then we will do introduction to materials. So this is first lecture. We will do only two things today, and then in the coming lectures we will do the remaining portion of this syllabus. So basically we are starting from this part, right? Because first we need to understand the material. Okay, then only we will do the manufacturing. ठीक है, मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना ये सबसे पहले ज़रूरी है. उसी के बाद हम उसमें कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हमें अप्लाई करना है फॉर मेकिंग दैट प्रोडक्ट. ओके, एंड मीन्स फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर मटेरियल. ओके, विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज सुटेबल, दिस वी कैन ओनली सेलेक्ट आफ्टर मीन्स हैविंग द नॉलेज ऑफ मटेरियल साइंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम मटेरियल साइंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं. मटेरियल साइंस में हमें करना है बेसिकली एक तो मटेरियल क्या होता है ना, बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे. आज के लेक्चर बेसिकली इसी के ऊपर है. देन इन द सेकंड लेक्चर वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. ओके, एंड दैट इज अ ब्रॉड टॉपिक एंड इट विल टेक 2 lectures, minimum 2 lectures will take the classification of material, how we can classify the materials, and then one by one we will do every category of materials in details. Okay, but for first year students you need to understand only a very precise content of this material science topic. Okay, so we will only do here some mechanical properties. Okay, then iron carbon diagram you can see. Okay, basic of iron carbon diagram, then mechanical properties, and mechanical properties of only ferrous and non-ferrous materials. Okay, because there are various types of materials है ना, जो आपके मेटल हैं, अलॉयज हैं, सिरामिक्स हैं, पॉलीमर्स हैं, ओके, सेमीकंडक्टर्स हैं, एडवांस मटेरियल हैं, स्मार्ट मटेरियल्स हैं, नैनो मटेरियल्स हैं. बट हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ फेरस और नॉन फेरस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में है. ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ा सा देखना है प्लेन कार्बन स्टील का. ठीक है, और उसके बाद स्टील में अगर हम अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, सो ये टॉपिक हमें देखने हैं बेसिकली. बट इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा एडिशन और करेंगे. ओके, मीन्स बेसिकली क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और कहीं कहीं पर हम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से भी इसको देखते हैं. ओके, सो इसमें थोड़ा बहुत एडिशन या थोड़ा बहुत चेंज है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत उसने हीट ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की है. ओके, हीट ट्रीटमेंट.
ठीक है। कहीं कहीं पर थोड़े एडवांस मटेरियल पे भी उसने फोकस किया है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और हमें भी इस पर थोड़ा बहुत फोकस ज़रूर करना चाहिए एडवांस मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो ये जो एडवांस मटेरियल वाला पार्ट है, तो ये तो हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना, उसी में हमारा कवर हो जाएगा। देखिए आल्दो हमारे सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है, बट उसके बिना आप मटेरियल साइंस में एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं पता तो आप मटेरियल साइंस में, आपको पर्टिकुलरली जाना है मेटल्स पर, और मेटल में भी फेरस और नॉन फेरस पर, और उसकी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। बट वहाँ जाने का जो रास्ता है, तो आपको उस ब्रांच, उस ट्री को समझना पड़ेगा कि वो ट्री कैसा है, ठीक है, उसकी सारी ब्रांचेस क्या हैं, एंड देन वी विल गो ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज फेरस एंड नॉन फेरस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा टॉपिक जो है आपका, ठीक है, जो पूरा कंटेंट है, तो अभी ये थोड़ा रफली मैं आइडिया दे सकता हूँ आपको कि ये कम से कम भी ना तो 8 से 10 लेक्चर में हमारा कवर होगा, ठीक है, 8 से 10 लेक्चर, और जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। देन जो सेकंड पार्ट है जो मुझे कवर करना है, ठीक है, दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू प्राइमरी मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शन है। सो उसमें कास्टिंग, वेल्डिंग, ओके, देन स्मिथ फोर्जिंग, ओके, एंड फॉर्मिंग, ओके, और मशीनिंग, ठीक है, जो बेसिक मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, और फिर मशीनिंग में क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन करना है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा आप करोगे तो इट इज़ ए मेजर सिलेबस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका जो ब्रांच है वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन चाहिए, है ना। हमें आपके लिए एक डिटेल कंटेंट नहीं बनाना, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बनाना है, बट इंट्रोडक्शन हम इस तरह से बनाएंगे कि आपको कम से कम एक बेसिक नॉलेज अच्छी मिल जाए, ठीक है। मार्क्स तो आप यहाँ से गेन कर ही लोगे, बट एक बेसिक नॉलेज भी आपको अच्छे से मिल जाए, ताकि आप अपनी ब्रांच में उन चीज़ों को यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। सो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल्स, ओके। सो ये कंटेंट है आज का। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि मटेरियल कैसे कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से आया, ठीक है। देन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे मटेरियल्स के बारे में। सो इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है, ठीक है, सो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होता है आपका, उसको हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक तो मटेरियल साइंस में और एक मटेरियल इंजीनियरिंग में, है ना। वैसे तो इनको सिनोनिमसली मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, यानी मटेरियल साइंटिस्ट को हम मटेरियल इंजीनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो मटेरियल साइंटिस्ट होते हैं दे आर आल्सो नोन एज मटेरियल इंजीनियर्स, एंड मटेरियल इंजीनियर्स आल्सो नोन एज मटेरियल साइंटिस्ट। बट एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो मटेरियल साइंस आपकी ब्रांच है, या जो मटेरियल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनका काम होता है कि किसी मटेरियल में, चाहे वो आपका नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है या उसको सिंथेटिकली हमने डेवलप किया है, ठीक है, चाहे वो अलॉय है या कोई भी कैटेगरी का मटेरियल है, सो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना, ओके, उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना, है ना। उसमें बताना कि भाई इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और पर्टिकुलरली मान लीजिए जैसे मैकेनिकल में होती है एक इलास्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, सो इस मटेरियल की इलास्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलास्टिक स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल, है ना। कोई भी मटेरियल हो सकता है, मान लीजिए पेन ही है, ठीक है, सो इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू लेट्स से इट्स 220 गीगापास्कल, ठीक है। सो वो काम है मटेरियल साइंटिस्ट का। अब मटेरियल इंजीनियर्स का काम ये है कि इस मटेरियल को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि जब भी रॉ मटेरियल्स आपको दिया जाता है वो एक रेगुलर शेप एंड साइज़ का दे देते हैं, ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है वो या तो ऐसे सर्कुलर सिलेंडर की शेप में मिलेगा, ठीक है, इस तरह के सर्कुलर सिलेंडर शेप होंगे, ओके, या फिर रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा, इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप्स होंगी, ठीक है। मतलब इसी शेप में ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं, ओके, है ना, या तो ऐसा या फिर इस तरह का शेप, और डायमीटर, लेंथ ये थोड़ा बहुत जो है वेरी कर सकता है, ठीक है। ये होता है रॉ मटेरियल्स हमें किस शेप में प्रोवाइड कराया जाता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, बट कुछ और शेप भी हमें मिल सकती हैं, दैट विल डिपेंड। अब हमें इन मटेरियल्स को, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका एक मटेरियल होता है माइल्ड स्टील, तो ये माइल्ड स्टील है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें जहाँ तहाँ मिलता है, उसका एप्लीकेशन भी बहुत है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा चीप भी है,
ठीक है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है। सो मान लीजिए माइल्ड स्टील का हमें रॉ मटेरियल इस शेप में हमें प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। अब हमें इस शेप को कन्वर्ट करना है अपने यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। यूज़फुल प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे ये बोतल हो सकती है, ठीक है। वैसे तो ये कॉपर की है ना, बट मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि ये माइल्ड स्टील की बनी हुई है, ठीक है। सो हमें इस शेप को, ओके, जो कि सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, इस शेप को हमें कन्वर्ट करना है टू दिस बॉटल, ओके, या इस शेप को, है ना, हमें कन्वर्ट करना है टू दिस बॉटल, ओके। सो दैट इज़ द प्रोसेस, ओके। तो मटेरियल इंजीनियर ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मटेरियल को हमें इस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। एंड देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द प्रोसेसिंग एंड द प्रॉपर्टी, एंड इफ़ यू हैव गुड प्रॉपर्टी देन यू विल हैव गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। सो जैसे आप प्रोसेस करोगे वैसे आपका बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। बट ये स्ट्रक्चर जो है, इसका मीनिंग होता है कि जो आपका मेटल है या जो भी मटेरियल्स है उसके जो एटम्स हैं, है ना, या जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब बेसिक टर्म है यहाँ पे। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बेसिक टर्म है कि उनका स्ट्रक्चर्स कैसा है, ओके। और इसका भी हम देखेंगे कहीं एक लेक्चर अपना ज़रूर इसका लगाएंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद इसी से आपको मिलती है प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जैसा स्ट्रक्चर होगा आपका, है ना, अगर आपको मतलब ध्यान हो तो BCC होता है, FCC होता है, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। सो ये सब आपका स्ट्रक्चर होता है। इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो इस तरह की चीज़ें, ये स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा, मान लो BCC होगा, FCC होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल में होती है वो इनहेरेंट होती हैं, थोड़ा बहुत आप उसको अल्टर कर सकते हो, और जैसी आपकी प्रॉपर्टीज़ होगी वैसी ही आपकी परफॉर्मेंस होगी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस बॉटल की स्ट्रेंथ अच्छी है ना, और स्ट्रेंथ के साथ साथ इसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है, ठीक है, इसकी हार्डनेस अच्छी है, तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगी, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। और यहीं अगर इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छी ना हो, सो क्या होगा, यहाँ से कोरोजन स्टार्ट होगा एंड इट विल डिके, ठीक है। और मान लीजिए अगर ज़रा सा इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ गया, सो इट विल नॉट बी मीन्स यूजेबल एनी मोर, ओके, यू हैव टू थ्रो इट, है ना, तो आपका ये वेस्टेज हो गया, ठीक है। सो हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस मिले। जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, वी वांट बेटर एंड बेटर परफॉर्मेंस सो दैट आवर मीन्स इकोनॉमी कैन ग्रो, ठीक है। सो वो कैसे होगा कि अगर हम उसका प्रोसेसिंग अच्छे से करें, एक अच्छा स्ट्रक्चर हमें मिले, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ हम अच्छी मेंटेन करें, देन ओनली वी विल हैव ए गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। सो ये तो था थोड़ा सा मटेरियल का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के उसमें हमें ये देखना है कि जो मतलब पहले टाइम से, है ना, अगर हम ऐसे एक लाइन बना लें, ओके, और ये मान लीजिए टाइम है आपका 2 मिलियन BC का टाइम है, ठीक है, बिफोर द क्राइस्ट, ठीक है, मतलब क्राइस्ट के बर्थडे से पहले 2 मिलियन। सो अगर हम उस समय इमेजिन करें कि हमें किस तरह के मटेरियल्स हमारे पास थे उस समय, है ना, और यहाँ पे एक कहीं ब्रेक दे दें हम लगभग 3000 BC पे, और एक ब्रेक यहाँ पे दे दें हम 1000 BC पर, ओके, और एक है आपका ये प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट एरा है, ओके। सो अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो ये स्टडी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ओके। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में जो मटेरियल्स है वो हम किन किन वे में यूज़ करते हैं और अलग अलग सेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है आप देखते हो कि ट्रांसपोर्टेशन में, ओके, ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास कार है, बाइक है, साइकिल्स हैं, ओके, एरोप्लेन है, और यू हैव शिप्स, यू हैव मीन्स बुलेट ट्रेन्स, यू हैव मैनी मोर थिंग, ठीक है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हैं, मिसाइल्स हैं, ओके। सो ये सब क्या है, अभी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसलिए मिसाइल्स पे नहीं जा रहे। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ हमें मटेरियल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। और एक मतलब अगर कार भी लोगे आप, तो उसमें भी आप देखोगे कि हज़ारों अलग अलग तरह के मटेरियल्स लगे होते हैं, ओके। हाउसिंग में, है ना, बिल्डिंग बनाने में, अपना घर बनाने में, क्लोथिंग में, है ना, डिफरेंट काइंड के क्लोथ्स हमें चाहिए होते हैं। देन कम्युनिकेशन में, मोबाइल, ओके, टू प्रोड्यूस द इंटरनेट, टू मीन्स लैपटॉप, okay, this pen tab, you have many kind of communication. Then recreation,
ओके मतलब जो चीज़ें हैं उनको रिक्रिएट करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऑब्वियसली। देन फूड प्रोडक्शन में ओके यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, जैसे बिस्किट्स हैं, ओके यू हैव योर पैकेट ऑफ मिल्क, ठीक है। सो वहाँ पे हमें मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर मशीनरी बनाने के लिए एक सूटेबल मटेरियल की ज़रूरत है ना। और वो मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलेगा? बाय द नॉलेज ऑफ मटेरियल साइंस, ठीक है। सो ये आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, है ना। ये कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये क्लोथ्स हो गए, और जैसे उसमें और आप डेली जो आपके होम अप्लाइंसेस होते हैं, ठीक है, टीवी, फ्रिज, कूलर तो नहीं, ये एसी है ना, कूलर भी है। और ये आपका हाउसिंग हो गया, ये आपका ये बेसिकली आपका हो गया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, सो वो भी एक सेक्टर है। डिफेंस इज़ आल्सो ए मेजर सेक्टर, है ना। और ये है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, तो मोबाइल से लेके और लैपटॉप, ओके, डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें हैं। ये जो पुराने टाइम में मोबाइल यूज़ होता था ये वो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम मटेरियल्स को देखते हैं, ठीक है। मतलब मटेरियल का डेवलपमेंट हमें समझ में आता है कि हाँ भाई इस तरह से हो रहा है, ओके। सो बेसिकली अगर हम देखें कि भाई घर है ना, सो आज के टाइम में हमारे जो घर हैं वो इस तरह की बिल्डिंग्स बन रही हैं, ओके, मल्टी स्टोरी, ओके। और अगर हम कंपेयर करें कि भाई आज से ज़्यादा टाइम में नहीं कि 100 ईयर्स पहले घर किस तरह के होते थे, ठीक है, तो हमें यहीं से अपनी मटेरियल की जर्नी हमें समझ में आएगी कि आज से अगर 100 ईयर्स बिफोर हम देखेंगे तो घर कैसे होते होंगे कि भाई मिट्टी की दीवार, ओके, और उसके ऊपर जो तो फूस का या कुछ और चीज़ें यूज़ करके जैसे तैसे छत रहती थी, बस ये होता था हमारा घर का स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं, 100 ईयर्स बिफोर ओनली। और उससे और पहले चले जाओगे तो फिर और चीज़ें हैं, है ना। बट उसी में मतलब और भी हैं जो बड़े बड़े महल हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स भी हैं, दे आर आल्सो देयर। बट एक कंपैरिजन आप ज़रूर देखते हो कि भाई अगर अभी भी आप गांव में कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ के घर आप देखोगे तो मिट्टी की दीवारें और ये सब चीज़ें आपको अभी भी दिखाई देंगी, पुरानी जो रह गई हैं। बट जो मॉडर्न टाइम है बेसिकली, तो उसमें क्या है कि भाई इस तरह की बिल्डिंग्स आपको ज़्यादातर नज़र आ रही है ना। तो यही है कि मटेरियल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, ओके। ये तो हम एक रिसेंट टाइम की बात कर रहे हैं, अगर इसमें हम बहुत पहले की बात करेंगे तो चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी, ठीक है। सो उसी को हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल से। सो उसको बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा कहते हैं हम स्टोन एज, ठीक है, ओके। स्टोन एज जो कहलाता है वो 2.5 मिलियन BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। और एक हमारा होता है ब्रॉन्ज एज जो कहलाता है हमारा 3500 BC कहलाता है, ठीक है। देन वी हैव आयरन एज हमारा होता है 1000 BC, ठीक है। सो मतलब यहाँ जो था हमारा स्टोन एज था, इस जगह पे जो था हमारा ब्रॉन्ज एज था, और इस जगह पे हमारा आयरन एज, मतलब यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। जब 1000 BC से आयरन एज स्टार्ट हुआ और वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। हालांकि आज के टाइम को हम बोलते हैं कार्बन एज, ठीक है, क्योंकि आजकल जो कार्बन है उसका यूज़ ज़्यादा है, जैसे सेमीकंडक्टर, ओके। सो अर्ली मटेरियल अकर्स नेचुरली, है ना। नेचुरली जो अर्ली मटेरियल्स थे तो वो क्या थे? स्टोन थे, लकड़ी थी, मिट्टी, स्किन, एंड देन प्रोड्यूस पॉटरी एंड मेटल्स, ठीक है। ये सबसे अर्ली मेटल, मतलब अब भाई दुनिया में था तो पत्थर तो मिल ही गए होंगे कभी भी, चाहे आप किसी भी एज में चले जाओ। लकड़ी, है ना, क्ले, मिट्टी और स्किन, ठीक है। इंसान रहा होगा तो उसके पास स्किन रही होगी, ओके। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कुड बी अल्टर्ड बाय हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे अल्टर कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं? एक तो हीट ट्रीटमेंट से, एंड दूसरा है बाय एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस को ऐड करके। सो ये 2 बेसिक मीन्स तरीके हैं कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बदलने के, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें हीट ट्रीटमेंट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपने सिलेबस में। अगर आपके यहाँ नहीं भी है, ठीक है, फिर भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप कह पाओ कि भाई हमें मटेरियल साइंस की नॉलेज है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ये है आपका स्टोन एज के कुछ चीज़ें, है ना। स्टोन एज में क्या था कि भाई पत्थर की चीज़ें थी, ओके। मीन्स इन्हीं पत्थरों से जो भी लोग थे वो अपना शिकार करते थे, ठीक है। इसी में अपना वो जैसे भी करके इनको पिन पॉइंटेड बना के, एंड दे यूज़ इट फॉर हंटिंग पर्पज़, ओके। तो ये था हमारे स्टोन एज के कुछ चीज़ें।
देन हम देखते हैं ब्रॉन्ज एज में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, ठीक है, क्योंकि ब्रॉन्ज जो होता है वो आपका मेटल होता है एक तरह का, और बेसिकली इसमें कॉपर एंड टिन पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और भी बहुत माइन्यूट मात्रा में कुछ और मेटल्स और नॉन मेटल्स भी होते हैं, बट जो मेजर है आपका वो कॉपर एंड टिन है, ठीक है, ब्रॉन्ज में। सो ये बेसिकली मेटल है, तो इसकी जो चीज़ें हैं दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड दे आर इन गुड शेप, ठीक है, पिन पॉइंटेड, ओके। सो ये कुछ और चीज़ें हैं जो हम ब्रॉन्ज एज में देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर यूज फॉर फाइटिंग, ठीक है। देन दिस इज़ द आयरन एज इक्विपमेंट, है ना, आयरन एज जो कि 1000 BC से स्टार्ट हुआ, ओके। सो वही जो ब्रॉन्ज के इक्विपमेंट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया आयरन के इक्विपमेंट से, ठीक है, क्योंकि फिर आयरन इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा, एंड आयरन जो है आपका बेसिकली ये ज़्यादा चीप है आपका ब्रॉन्ज से, ठीक है। सो इसीलिए हम प्रेजेंट टाइम में जो देखते हैं ज़्यादातर स्ट्रक्चर हमारे किस चीज़ के बने हुए हैं, मेटल्स के बने हुए हैं, ओ सॉरी मेटल्स के साथ साथ मतलब वो स्टील, ठीक है, और स्टील जो अलग अलग टाइप की होती है आपकी, उन चीज़ों के बने हुए हैं, ठीक है। एंड स्टील इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। देन हम देखते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल को एक बार फिर से, क्योंकि आपको जो पढ़ना है बेसिकली वो जो भी मेटल्स हैं, सिरामिक्स हैं, वो इसी पीरियोडिक टेबल से निकल के आए हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर अच्छे से आती होगी, ओके। सो इसमें जो भी चीज़ें आपको पता है कि हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये ट्रांजिशन मेटल ग्रुप है, ओके। ये आपका यहाँ पे आयरन है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर इधर कुछ गैसेज हैं, है ना, ये भी कुछ इनर्ट गैसेज हैं, दीज आर ऑल, ओके। सो बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो मेटल्स पे रहेगा, ओके, क्योंकि दिस इज़ अबाउट मीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। सो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि हम मेटल्स से ही ज़्यादा डील करते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं या जो बाकी चीज़ें गैसेस वगैरह हैं वो हमें नहीं देखना है, ठीक है। मेटल से हमें ज़्यादा डील करना है, तो बेसिकली आपका आयरन है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये सब चीज़ें, और इवन क्रोमियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है बेसिकली, ओके। अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या है। ये कोई भी मटेरियल है, ठीक है, सो उसकी टोटल जो प्रॉपर्टीज़ हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है एक तो उसमें कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी, उसमें कुछ थर्मल प्रॉपर्टी होगी, then it will have some optical property, it will have some electrical property, then it will have another advanced technological properties, then it will have chemical, magnetic and physical property, ठीक है। सो ये एक बेसिक हो सकता है कि किसी भी मटेरियल को आप ले लोगे तो उसमें ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। मतलब कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसी तरह से कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में मान लीजिए उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ कितनी है, हार्डनेस कितनी है, ठीक है। और कुछ और टर्म यूज़ होती है मैकेनिकल में, जैसे डक्टिलिटी कितनी है, ब्रिटलनेस कितनी है। सो ये थोड़ा थोड़ा आपको अभी अगले लेक्चर्स में पता चलेगा। इसी तरह से थर्मल प्रॉपर्टीज़ में कि उसका थर्मल एक्सपेंसन कितना है, मतलब अगर उसको आप हीट दोगे तो वो किस तरह से एक्सपेंड होती है, ठीक है। या उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो हीट कितनी तेज़ी से उसमें कंडक्ट हो रही है। देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये है कि इन द मीन्स अगर आप उसको लाइट में रखते हो, ठीक है, तो वो किस तरह से बिहेव करती है, ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है ना, और बाकी चीज़ें। तो ये सारी आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। देख इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है ना, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ही हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल में एडवांस टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। केमिकल मतलब कि केमिकल रेजिस्टेंस कितना है, कोरोजन रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। सो बेसिकली और वेरियस जो अलग अलग हमारे केमिकल्स हैं उनके साथ क्या रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में उसका मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा, है ना, कि बेसिक मैग्नेटिक बिहेवियर यही कि आप उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, सो वो मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होती है, रिपेल होती है या न्यूट्रल रहती है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका फिजिकल फॉर्म कैसा है ना। फिजिकल फॉर्म मतलब कि वो एग्जिस्ट करती है पाउडर की फॉर्म में या शीट की फॉर्म में, ओके, या कैसे वो एग्जिस्ट करती है, उसका साइज़, शेप, ठीक है। सो बेसिकली ये सब चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को दर्शाएगा।
Okay, so this is all about the various properties of any materials. ठीक है, but as a mechanical engineer, okay, and particularly for this subject, so we will focus majorly on the mechanical properties. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें ज़रूरत पड़ेगी थर्मल की, इलेक्ट्रिकल की और थोड़ा सा मैग्नेटिक एंड फिजिकल की. ठीक है, बट मेजरली जो हमें ज़्यादातर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे ही फोकस करना है. सो जो मेजर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पर हैं. उसमें आपका आता है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, टफनेस, रेजिलियंस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, क्रीप, फटीग एंड मशीनेबिलिटी. ठीक है, सो ये आपकी जो मेजर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पर हैं, है ना. और इनके बारे में हमें ज़रूर डिटेल में करना पड़ेगा. ठीक है, भले ही आपके सिलेबस में ये लिखा ना हो, बट यू हैव टू डू इट. ओके, कि स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका मतलब इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट. देन स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, डक्टिलिटी, एंड इसमें एक चीज़ नहीं है, हाँ सॉरी, ये है डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस. ओके, बट इसके अलावा भी एक दो चीज़ें होंगी जो इसके एडिशन में आपको करनी है ना. बट दीज आर द ऑल बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ओके, विच वी हैव टू स्टडी. So this was all about this particular video, okay, first lecture. And in second lecture, means in the coming lecture, we will start with the classification, okay, classification of material, right. And this classification of materials will take minimum 2 lectures, okay. In second lecture basically we will do the classification of materials and like metal, ceramics, polymers, composites, okay, these 4: metal, ceramic, polymer, composite. And in the second lecture, that will be your third lecture, okay, in that lecture we will do the advanced materials. Okay, this is very important. We have to do this advanced material at least for 1 lecture, because in today time most of the your technology, most of your equipments, okay, we are using these advanced materials. And advanced material can be your smart material, nano materials, okay, like this, semiconductors. Okay, so this is all about this first lecture. And if you are new to this channel is about particularly for preparation of gate. If you belong to any branch, mechanical, electrical, electronics, or even computer science, okay, so you are welcome in or on this channel. You can utilize, this is free of cost and this is open to all. Okay, so thank you for watching this, and I hope you like this first lecture, and you will continue this full subject, and you will also ask your friends and your colleagues to join. Okay, thank you everyone.